Good morning, class 12. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to solve some questions of NCERT exercise that is from the chapter number 5. And that chapter, the name of the chapter is the Magnetism and Matter. Class, we have studied the whole chapter in very detailed manner. बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा है. जितना हमें क्लासेस की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा भी हमने डिटेल में पढ़ा है. So after completing the chapter, we are going to start the solution of the NCERT numericals. That is a very important regarding to your examinations. इस चैप्टर से मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछता है. 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछता है. दैट इज ओनली अ फॉर्मूला बेस्ड. तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है तो ज़्यादा हम इसमें बहुत परेशान नहीं होंगे. हम फटाफट इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फटाफट करेंगे. ठीक है, इन अ वेरी कॉन्साइज मैनर. सो before wasting a lot of our time, let me start with the numerical number 3. Question number 3, sorry, not a numerical number 3, that is the first numerical, and that is the question number 3. During when we was discussing about the theory, we have discussed about the question number 1 and question number 2. एनसीईआरटी का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो और क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस है. तो जब हम थ्योरी का डिस्कशन कर रहे थे वहाँ हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Today we are going to start with the question number 3 from the exercise. Let me see what the question is given here. The question is given here, the short bar magnet placed with its axis. एक बार मैग्नेट एक्सिस पे रखा हुआ है, अपनी एक्सिस पे रखा हुआ है at 30 डिग्री with a uniform magnetic field. यानी बार मैग्नेट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज ऑफ 30 डिग्री. एक बार मैग्नेट है लाइक दिस. बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज द 30 डिग्री. ये मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस. यू कैन सी हियर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी. इससे जो एंगल ड्रॉ कर रहा है दैट इज ऑफ 30 डिग्री. सो वी कैन से द एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री with a uniform magnetic field of the 0.25 Tesla. This is the value of magnetic field. Magnetic field is represented by the B, that is the 0.25 Tesla. Experiences a torque of a magnitude. What is the torque is given here? 4.5 into 10 power minus 2 joule. This is the torque given here. We need to find the magnetic moment, and magnetic moment is represented by the capital M. So students, during the theory portion we have studied about the formula for the torque. That was the torque tau is equal to m into b sin theta. हमें m की वैल्यू फाइंड करना है तो m will be torque tau upon b sin theta. ये हमारे टॉर्क की वैल्यू जाएगी. पुट द वैल्यू हियर. टॉर्क की वैल्यू कितना है? 4.5 into 10 power minus 2 joule upon b is here 0.25 and sin 30 degree is given here. Now after solving this we will get the answer. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर 0.36 जूल पर टेस्ला. ये हमें फॉर्मूला आंसर मिलेगा. दैट इज द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स. ओके, हमें जो क्वेश्चन आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.36 जूल पर टेस्ला, and this is the unit of magnetic moment m. Okay, okay class, now this is the another question number 4 here. After doing the question number 3 we come to the question number 4. A short bar magnet of a magnetic moment of 0.32 joule per Tesla. ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दिया हुआ है. तो परेशान नहीं होना. कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते, कभी हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते. बोथ आर द सेम रिप्रेजेंटेशन. जूल पर टेस्ला इज द यूनिट हियर. इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला. हमें क्या दिया हुआ है? स्मॉल एम इज इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला. 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in a plane of a field, which orientation would correspond to its stable equilibrium and unstable equilibrium? एक बार को हमने फ्रीली छोड़ दिया है उसको ओरिएंटेशन के लिए, रोटेशन के लिए. हमें बताना है स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा. यू नो वेरी वेल व्हेन वाज डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक द बार मैग्नेट, वी हैव टोल्ड देयर कि एक बार मैग्नेट अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर एक हम बार मैग्नेट पुट करते हैं तो स्टेबल कब होगा? व्हेन बार मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बार मैग्नेट हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो. इट मींस
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो पहला केस हमारा क्या हो जाएगा, केस नंबर ए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 डिग्री होती है। एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, यू इज इक्वल, what is the potential energy? We know the formula for potential energy, u is equal to minus mb cos theta। ये हमारा फॉर्मूला होता है, u is equal to minus mb cos theta। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, so we will get the answer minus value of m is 0.32 and b is 0.15 cos 0 degree। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। when we will solve we will get minus 4.8 into 10 पावर माइनस, हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2 जूल। इतनी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा इन द केस ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ इन द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब इसको हम 180 डिग्री रोटेट करा देते तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो दैट इज द केस बी फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देन अगेन फाइंड द फॉर्मूला, u इक्वल टू माइनस m into b cos 180 degree, and we know the value of cos 180, that is the minus 1। so we will get here minus m, value of m is here, magnetic moment 0.32, magnetic field 0.15 into cos 180 is minus 1। when we will solve we will get here 4.8 into 10 power minus 2 जूल। इतनी वैल्यू हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और इतना वैल्यू हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट सो यू कैन इजीली नोट डाउन दैट। ओके, सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ क्वेश्चन इज गिवन हियर, अ क्लोजली वाउंडेड कॉइल ऑफ 800 टर्न्स। How many turns are there? The turns are here 800 times. So we can say small n is equal to 800 turns, and the area of cross section is a 2.5 into 10 power minus 4 meter square. What is the area? 2.5 into 10 power minus 4 meter square. Carries a current of 3 ampere. Current I is equal to 3 ampere. Explain the sense when the solenoid acts as a bar magnet. एक सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह कब एक्ट करेगा? व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू NIA। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो, एक सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह कब बिहेव करेगा? दिस इज कॉल्ड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि व्हेन वी allow the current to flow from the solenoid, due to the rotation of a current it will produce a strong magnetic field, due to the loop it will produce a strong magnetic field inside the coil। इसके अंदर एक coil के अंदर strong magnetic field produce होगा, इधर से हमारा produce हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, एंड दिस वन इज अ साउथ पोल। सो ये यहाँ पर एक ऐसा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड है, वी नीड टू फाइंड a magnetic moment। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। Magnetic moment is a NIA, put the value, n is here 800 turns, into current is here 3 ampere, into IA is here 2.5 into 10 power minus 4. Now multiply all these turns, you will get the answer. It will be here 0.6 joule per Tesla. This will be the answer, 0.6 joule per Tesla. Okay, hope so आपको ये समझ में आया होगा। Note down this one, take the screenshot and note down this question. See the another question, question number 6, that is related to the question number 5। 6 का रिलेशन 5 से है। 5 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक मोमेंट, दैट वाज द 0.6 जूल पर टेस्ला। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड 0.25, अ सोलिनॉइड रोटेट्स फ्रॉम द पोजीशन। अपने पोजीशन से रोटेट हो जाता है थोड़ा सा। कितना रोटेट हो जाता है? वो 30 डिग्री रोटेट हो जाता है। उसने बोला है कि 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड
की वजह से रोटेट हो जाता है. What will be the torque there? Torque क्या प्रेजेंट होगा? Then torque tau is equal to m into b sin theta. We know the formula, torque tau is equal to m into b sin theta. Now put the value of m we have find it there 0.6, b is here 0.25 and value of sin theta is a 30 degree. That we have find it here the value of torque. Now after substituting the value of 30 degree, we will solve and we will get the answer. Multiply these two, 25 6 150 will be here 0.150 into sin 30 is here. Put the value of sin 30 and solve it, you will get the answer. This value of torque is generated here. This will be your homework. Okay. Now let me see the question, another question, that is the question number 7. The question is given a bar magnet of a magnetic moment 1.5 joule per Tesla. The magnetic moment is given here 1.5 joule per Tesla. We know the magnetic moment is represented by the capital M, that is the 1.5 joule per Tesla. इतना magnetic moment दिया हुआ है. Allies with the direction of the uniform magnetic field. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा अलाइज कर रहा है. इट मीन थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.22 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.22 टेस्ला. What is the amount of work done required for the external torque to turn the magnetic field so it aligned in a magnetic moment? पहला डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल टू द डायरेक्शन. पहले केस में हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. हमें क्या निकालना है? व्हाट अमाउंट ऑफ अ वर्क डन इज रिक्वायर्ड. हमें वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी. वर्क डन की वैल्यू मीन्स हमें एनर्जी फाइंड करना है. वी नो द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी और वर्क डन. W इज इक्वल टू माइनस m इंटू बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालने का. और वी कैन से फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी. पुट द वैल्यू m इज हियर 1.5 इंटू b इज हियर 0.22 cos थीटा 2 इज हियर 90 डिग्री माइनस cos थीटा 1 इज हियर 0 डिग्री. एंड cos 0 की वैल्यू क्या होती है? sin 0 की 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है. आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट द आंसर. इसको सॉल्व करने पर हमें क्या आंसर मिलेगा? 0.33 जूल. इतनी वैल्यू मिलेगी हमें ये सॉल्व करने पर. कब? व्हेन द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड. पहले दिया हुआ नॉर्मल डायरेक्शन में, दूसरा दिया हुआ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड. इट मींस इन द सेकंड केस थीटा 2 इज हियर 180 degree. Now again find the value. W is equal to minus m into b cos 180 degree minus cos 0 degree. And we know the value of a cos 180 degree is a minus 1. हमारा cos 180 डिग्री क्या होती है? minus 1. So ये दोनों हमारा minus 1 और minus 1 minus 2 हो जाएगा. When we will solve this, what we will get the answer? हमें इसका आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई थी? ये आई थी माइनस 0.33 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2. और वी कैन से 0.33 इंटू माइनस 2 और वी कैन से 0.66 जूल. दिस विल बी द आंसर इन द केस सेकेंड. व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड. ये पहला केस था. एंड व्हेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हमारा दूसरा केस है. हमने दोनों के केस में वर्क डन निकाल लिया कि पहले के केस में वर्क डन 0.33 आया और दूसरे केस में वर्क डन हमारा क्या है? 0.66. नाउ सेकंड केस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो यू कैन इजीली एबल टू नोट डाउन दिस वन. स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आसानी से इसको नोट डाउन कर सको. नाउ लेट वी कम टू द सेकंड केस. सेकंड केस इज दिया हुआ फाइंड द केस फाइंड द टॉर्क इन अ केस 1 एंड 2. हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पहले केस में 0 डिग्री पर 90 डिग्री पर और दूसरा 180 डिग्री पर. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू m इंटू बी साइन थीटा. एंड थीटा इज हियर 90 डिग्री
sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. पुट द वैल्यू, we will get here m is 1.5 into b is 0.22 into 1 multiplied 15 to the 30, 3 carry over 33, it will be 0.33 torque. This is the value of torque and torque का unit क्या होता है 0.330 joule. Now in the second case again the torque tau is equal to m into b sin 180 डिग्री. हमें यहाँ पर वैल्यू साइन 180 की पुट करना है और वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द साइन 180 इज हियर 0, सो टॉर्क विल बी 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन द बोथ केस. पहला केस उसने क्या बोला, जब नॉर्मल हो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेकंड केस इन ऑपोजिट डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 180 डिग्री पर की वैल्यू हमारा 0 होगा और टॉर्क की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिमिलर ऐसे ही है, बहुत ही आसान है. उसमें हमें मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना. क्वेश्चन नंबर 8 में मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू NIA का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वहां पर शायद हमें टॉर्क भी फाइंड करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला इसको यूज करें. टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा. ये दो फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. दिस विल बी योर होमवर्क. ओके, okay, now come to the next question. The next question is here, a closely wound solenoid of a 2000 turns. हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है 2000. इट मीन्स n is equal to given here 2000 turns and the area of cross section is given here. A is given here 1.6 into 10 power minus 4 meter square. Carry a current of 4 ampere. I is equal to 4 ampere. Is suspended through the center, allowed it to turns in a horizontal plane. एक सोलिनॉइड को हमने फ्रीली सोलिनॉइड को 200 जिसमें 2000 टर्न्स हैं. एक सोलिनॉइड है जिसमें 2000 टर्न्स हैं हमारे, उसको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. और उसमें से करंट कितना फ्लो कर रही है, उसमें करंट हमारा फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर. सपोज दैट दिस इज द सोलिनॉइड. अब इस सोलिनॉइड में 2000 टर्न्स हैं और इससे करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रही है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस सोलिनॉइड का ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. इतना क्रॉस सेक्शन एरिया है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. पहला ए, मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है NIA. इतना मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है. फाइंड इट. n इज हियर 2000 turn, current I is here 4 into A is here 1.6 into 10 power minus 4 multiplied 4 to the 8 and multiplied it will be 8000 into 1.6 into 10 power minus 4. 16 8 जा 6 8 जा 48 4 12.8 into 10 power minus 1 और we can say 1.28 मैग्नेटिक मोमेंट. ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. ये इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इसमें जनरेट होगा. अब सेकेंड पार्ट हमें क्या पूछा है बी पार्ट. बी पार्ट, व्हाट इज द फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स ऑफ टॉर्क. फोर्स एंड टॉर्क नहीं, फोर्स ऑफ टॉर्क. व्हाट इज द फोर्स ऑफ टॉर्क व्हेन बी इज इक्वल टू गिवन हियर. बी की वैल्यू ये दिया हुआ है, थीटा ये दिया हुआ है. अब हमसे उसने पूछा कि कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट होगा. टॉर्क क्या होता है, एक रोटेटिंग फोर्स होता है विच यूज टू रोटेट द सोलिनॉइड. एक ऐसा फोर्स होता है जो सोलिनॉइड को रोटेट कर देता है. तो टॉर्क की वैल्यू होगी टाउ इज इक्वल टू m इंटू बी साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क. m की वैल्यू कितना है, इट विल बी 1.28 इंटू बी इज हियर 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्रीज हियर. सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर. इतना टेक्सला आंसर होगा. ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 8. सो दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट. क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन नंबर नाउ लेट वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11, 12 है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हमारे होते हैं फर्स्ट पार्ट में एडिशनल एक्सरसाइज के पहले, वो आपको होमवर्क में करने हैं। सारे हमारे से फॉर्मूले बेस्ड है, कोई टॉर्क पूछ रहा है, किसी में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, उस क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बार एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द मैग्नेट, चैप्टर नंबर 6। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।